So a very good morning, student. Greetings of the day. Once again, I welcome you all for the online lecture series on the course Railways, Airport and Waterways. So this course has been basically designed for the Department of Civil Engineering student affiliated to AKTU colleges as well as the different engineering colleges which are approved by AICTE, right? And this course is basically for the final year students of the all the engineering colleges affiliated to AKT, right? So this is actually lecture 17 part 2. Lecture 17 comes under the module 2, and the title of this lecture will be turnout, points and crossing. In previous lecture we have seen about the turnouts as well as points. Now we'll look towards the crossing as well as the switches. Okay, so till now we have covered some of the parts. We'll have a quick recap what we have covered till now. We have covered about the turnouts and different types of turnouts. Then what are the problems related with the turnouts, types of the turnouts, constituents of a turnout, components part of the turnout. uh, Different parts were also explained in my previous lecture. Then I also gave a brief introduction about the switches and its components, its basic definitions, its salient points, its different types. Okay, now today we'll start with this one, Mali. Types of the switches. Okay, so I told you this lecture will begin with a small question, that how do you define a switch? Okay, so in previous lecture I told you that a pair of heel blocks which hold the heel of the tongue rail is held at the standard clearance or distance from the stop rail. Okay, so if I define the switches, if I give a small definition, how do you define a switch? So a switch is basically a combination of the pair of a stock rail and a pair of the tongue rail. Okay, so the different types of the switches are, basically there are two types: stud switch and split switch. And split switch is further divided into two parts, that is loose heel type and the fixed heel type. And we'll talk about one by one in detail about the stud switch as well as the split switch. So what is a stud switch? A stud switch here means that no separate tongue rail is provided and some portion of the track is moved from one side to the other. देखो क्या होता है कि आपका जो स्विच है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन, टंग रेल और स्टॉक रेल, ये बात तो क्लियर है। अब ये दोनों कंपोनेंट हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा वेरी कर देंगे तो वो उसका क्लासिफिकेशन आपको निकल के आएगा। जैसे हम क्या करेंगे स्टड स्विच में, व्हेन we will provide no separate tongue rail, okay, and some portion of the track is moved from one side to the other side, उसको कहेंगे हम स्टड। ओके, और स्प्लिट का मतलब होता है दो पार्ट में तोड़ना। तो स्प्लिट में क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल एज वेल एज अ पेयर ऑफ द टंग रेल, तो उसको हम कहेंगे स्प्लिट। ओके, जो टंग रेल है स्टॉक रेल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वो हो गया आपका स्प्लिट स्विच। लेकिन स्टड स्विच में नो सेपरेट टंग रेल इज प्रोवाइडेड और हम ट्रैक को ही उसके कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को एक पार्ट से दूसरे साइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं आपके स्प्लिट स्विच, कौन से? लूज हील टाइप और फिक्स्ड हील टाइप। So two types are basically loose heel type and fixed heel type. Okay, so the two types of the switches are stud switch and split switch. And a split switch is further subdivided into loose heel type and fixed heel type. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें कि लूज हील टाइप क्या होता है, तो लूज हील टाइप इज अ स्प्लिट टाइप ऑफ स्विच। सबसे पहला तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, द स्विच और टंग रेल फिनिशेस एट द हील ऑफ द स्विच टू एनेबल द मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द टंग रेल। ये क्या होता है इसमें, ये तो सबसे पहले तो एक स्प्लिट स्विच का क्लासिफिकेशन है। जो लूज हील टाइप है इज अ टाइप ऑफ स्प्लिट स्विच। ओके, एंड द स्विच और टंग रेल finishes at the heel of the switch to enable the movement of the free end of the tongue rail। तो ये जो आपका टंग रेल होता है
ये बेसिकली कहाँ पे फिनिश होता है? एट द हील ऑफ द स्विच, एंड दिस फिनिश enables the movement of the free end of the tongue rail. Okay, the fish plates holding the tongue rail may be straight or slightly bent. ठीक है, तो जो fish plate होता है जो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को फिक्स करने के लिए, वो टंग रेल को जो होल्ड करता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और स्लाइटली बेंट भी हो सकता है. ठीक है, द टंग रेल इज फास्टेंड टू द स्टॉक रेल विद द हेल्प ऑफ अ फिशिंग फिट ब्लॉक एंड फोर बोल्ट्स. राइट, तो टंग रेल को हम कैसे फास्टन करते हैं, स्टॉक रेल से जोड़ते कैसे उसको, विद द हेल्प ऑफ अ फिशिंग फिट ब्लॉक एंड द 4 bolts. Right, so this is the definition and detail about the loose heel type. अब दूसरा आगे अगर इसके थोड़ा सा सैलिएंट पॉइंट की बात करें तो द फिश प्लेट इन द लीड रेल आर टाइटेंड while those in the tongue rail are kept loose or snug to allow the free movement of the tongue. Okay, हम क्या करते हैं, जो फिश बोल्ट है लीड रेल में उसको टाइट करते हैं, राइट, एंड जो टंग while those in the tongue rail are kept loose, उसको हम लूज रखते हैं या स्नग रखते हैं to allow the free movement of the tongue. Okay, as the discontinuity of the track at the heel is a weakness in the structure, the use of these switches is not preferred. So as the discontinuity of the track, मतलब heel पे इसकी discontinuity की वजह से इसकी weakness है structure की, तो इस वजह से हम इस तरह के switches को prefer नहीं करते. Right. Next है आपका fixed heel type. Now fixed heel type क्या होता है? In this type of split switch, the tongue rail does not end at the heel of the switch but extend further and is rigidly connected. ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, वो heel पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो जा रहा है, कंटिन्यू हो जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और rigidly क्या है, connected. The movement at the toe of the switch is made possible on account of the flexibility of the tongue. ठीक है, और जो मूवमेंट है, the movement at the toe of the switch is made possible on the account of the flexibility of the tongue. So this is about the fixed heel type. ठीक है, अब based on the toe of the switch, जो switches का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली एक और क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है, वो है toe. ठीक है, तो toe of the switch में सबसे पहला है आपका अंडरकट स्विच. अंडरकट स्विच का मतलब ये हुआ, द फुट ऑफ द स्टॉक रेल इज प्लान टू अकोमोडेट द टंग. ठीक है, अंडरकट स्विच का मतलब हुआ, द फुट ऑफ द स्टॉक रेल इज प्लान टू अकोमोडेट द टंग रेल. देन है स्ट्रेट कट स्विच. टंग रेल इज कट स्ट्रेट अलोंग द स्ट्रेट रेल टू इंक्रीज द थिकनेस एट द टो. ठीक है, स्ट्रेट कट स्विच में क्या करते हैं, द टंग रेल इज कट स्ट्रेट along the straight rail to increase the thickness at the toe. फिर है overriding switch. Overriding switch में stock rail occupies the full section and the tongue rail is planned to a 6 mm thick edge which overrides the foot of stock rail. Switch rail is kept 6 mm higher than the stock rail from the heel to the point towards the toe where planning starts. Okay, and it eliminates the possibility of splitting which might be caused by the movement of false flange in the trailing direction. देखो, अंडरकट स्विच में क्या किया, जो फुट है स्टॉक रेल, दो होती है ना, टंग रेल और स्टॉक रेल, तो अंडरकट स्विच में क्या हुआ, जो स्टॉक रेल का फुट है इज प्लान टू अकोमोडेट द टंग रेल. ठीक है, इसको स्टॉक रेल जो है आपका वो टंग रेल को अकोमोडेट करता है, उसे कहते हैं हम अंडरकट स्विच. अंडरकट स्विच में जो आपका स्टॉक रेल का फुट है वो टंग रेल को अकोमोडेट करता है. फिर आते हैं स्ट्रेट कट स्विच. स्ट्रेट कट स्विच में क्या होता है, जो आपका टंग रेल है, टंग रेल इज कट स्ट्रेट अलोंग द स्टॉक रेल टू इंक्रीज द थिकनेस एट द टो. ठीक है, तो स्ट्रेट कट स्विच में क्या होता है, टंग रेल इज कट स्ट्रेट अलोंग द स्टॉक रेल टू इंक्रीज द थिकनेस एट द टो. फिर ओवरराइडिंग स्विच में क्या होता है, स्टॉक रेल ऑक्युपाइज द फुल सेक्शन and the tongue rail is planned to a 6 mm thick edge which overrides the foot of stock rail. Switch rail is kept 6 mm higher than the stock rail from the heel to the point towards the toe where planning starts. And the third one is that it eliminates the possibility of splitting which might be caused by the movement of false flange in the trailing direction. Okay,
सो ये क्लासिफिकेशन किस पे है? ऑन द टो ऑफ द स्विचेस। कौन कौन सा? अंडरकट, स्ट्रेट कट एंड ओवरराइडिंग। फिर आपका ओवरराइडिंग स्विच में स्टॉक रेल इज अनकट, हेंस मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो स्टॉक रेल है वो अनकट होता है, इसलिए ये काफी मजबूत होता है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज कन्फाइंड ओनली टू टंग रेल व्हिच इज वेरी इकोनॉमिकल। ओके, सो योर मैन्युफैक्चरिंग इज कन्फाइंड टू ओनली टंग रेल, सो ये इकोनॉमिकल हो गया। दोनों की मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं करनी है, किसी एक की करनी है, तो वो इकोनॉमिकल हो गया। Then tongue rail supported by stalk rail, hence combined strength of the rail between the slipper is greater than that of tongue rail alone in the case of undercut switch. और last point है, these overriding switches are standardized and used in the Indian Railway. तो ये जो overriding switch है इसको हम globally accept किए हैं इंडियन रेलवे में, और यही आपका यूज होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग का मतलब हुआ, क्रॉसिंग or frog is a device introduced at the point where two gauge spaces cross each other to permit the flanges of a rail vehicle to pass from one track to another. अब इस तरह से आप समझिए, क्रॉसिंग का मतलब हुआ, क्रॉसिंग को हम फ्रॉग भी कहते हैं, ठीक है, मेढक से। अ क्रॉसिंग और अ फ्रॉग ये एक ऐसा डिवाइस है जो उस पॉइंट पे हम प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपका दो गेजेस, the two gauges facing each other to when the two gauges facing each other cross each other है। जब दो जो आपके दो पैरेलल ट्रैक्स हैं वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो हम वहां पे एक डिवाइस को पुट अप करते हैं उस पॉइंट पे, और वो डिवाइस आपका क्या करता है? वो परमिट करता है आपके फ्लेंजेस को, the flanges of a rail vehicle to pass from the one track to another. So a crossing or a frog is a device introduced at a point where two gauge faces cross each other to permit the flanges of a railway vehicle to pass from one track to another. उसके बाद क्या है? A gap is provided from throw to the nose of the crossing. ठीक है, एक गैप प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम थ्रो टू द नोज ऑफ द क्रॉसिंग। चेक रेल अस्योर्स द करेक्ट मूवमेंट एंड गाइड्स द व्हील प्रॉपर्ली, और उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं? चेक रेल। अभी मैं दिखाऊंगा क्रॉसिंग क्या होता है। क्रॉसिंग या फ्रॉग, क्रॉसिंग या फ्रॉग सिनोनिम्स वर्ड है। क्रॉसिंग या फ्रॉग इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट वेयर टू गेज फेसेस क्रॉस ईच अदर। जब दो गेज आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट पे हम उस डिवाइस को प्लेस करते हैं, और उस डिवाइस की वजह से उस फ्लेंजेस को परमिशन मिलती है टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ठीक है, उसके बाद अ गैप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम थ्रो टू द नोज ऑफ द क्रॉसिंग। हम थ्रो से नोज ऑफ द क्रॉसिंग पे एक गैप प्रोवाइड करते हैं, राइट। Check rails assures the movement and guides the wheels properly. और check rail क्या करता है? It assures the correct movement and it guides the wheel properly. अभी मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा कि क्रॉसिंग क्या होती है। क्रॉसिंग के जो कंपोनेंट हैं वो ऐसे हैं। पहले तो टू रेल्स, तो पॉइंट रेल, स्पाइस रेल आर ज्वाइंट। ठीक है, टू रेल के पास एक पॉइंट रेल एंड स्पाइस रेल आर ज्वाइंट। These are machined to form a nose. ठीक है, the point rail has its fine end slightly cut off to form a blunt nose with a thickness of 6 mm. ठीक है, the toe of the blunt nose is called the actual nose of crossing, ANC, actual nose of crossing, and the theoretical point where gauge faces from both sides intersect is called the theoretical nose of crossing, TNC. ठीक है, तो एक होता है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और दूसरा होता है theoretical nose of crossing. The V rail is planned to depth of 6 mm, okay, 1/4 inches at the nose and runs out in 89 mm to stop a wheel running in the facing direction from hitting the nose. तो पहली चीज है आपकी दो रेल, पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल। ठीक है, और पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल को हम क्या करते हैं? हम इसको मशीन्ड करते हैं टू फॉर्म अ नोज। ठीक है, देखो क्रॉसिंग कैसे कंबाइन करके कैसे उसे बनाया जाता है, क्योंकि एक असेंबलेज है, पैकेज है। ठीक है, हम
एक पॉइंट रेल और एक स्प्लाइस रेल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसको मशीन करते हैं टू फॉर्म अ नोज। नोज आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, द पॉइंट रेल हैज इट फाइन एंड स्लाइटली कट ऑफ टू फॉर्म अ ब्लंट। पहले तो दोनों रेल को आपने जब ज्वाइन किया तो एक नोज बन गया। उसके बाद जो आपका पॉइंट रेल है उसका जो फाइन एंड है वो काट दिया जाता है टू फॉर्म अ ब्लंट नोज, और वो ब्लंट नोज का जो थिकनेस है वो कितना है, 6 है, ठीक है। अब क्या होता है, जो टो है, द टो ऑफ द ब्लंट नोज इज कॉल्ड द एक्चुअल। देखो पहले दोनों को, स्प्लाइस रेल को और पॉइंट रेल को मशीन किया, उससे बन गया आपका नोज। उसके बाद जो पॉइंट रेल का एंड है उसे स्लाइटली कट किया, वो क्या बन गया, ब्लंट नोज। उसका थिकनेस क्या हुआ, 6 है। अब जो टो है ब्लंट नोज का, उसको हम कहते हैं एक्चुअल नोज ऑफ द क्रॉसिंग, ANC। और theoretical point where gauge faces from both sides intersect is called the theoretical nose of the crossing, TNC। अब जो V रेल होता है V शेप में, वही क्रॉसिंग आपका प्रोवाइड होता है। तो द V रेल इज planned to a depth of 6 mm at the nose and runs out in 89 mm to stop a wheel running in the facing direction from hitting the nose, right? तो ये आपके क्रॉसिंग के कंपोनेंट है। तो इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, स्प्लाइस रेल और पॉइंट रेल। क्योंकि स्प्लाइस रेल और पॉइंट रेल को आप ज्वाइन करोगे तभी जाके वो एक नोज फॉर्म करेगा, और उसी नोज पे आपके पॉइंट रेल को हम स्लाइटली कट करेंगे। कितने थिकनेस mm पे, 6 mm थिकनेस का उसको कट करके उसका क्या फॉर्म करेंगे, ब्लंट। और जो टो है ब्लंट नोज का, उसे कहेंगे एक्चुअल नोज ऑफ द क्रॉसिंग। और जो थ्योरेटिकल पॉइंट है जहां आपके गेजेस बोथ आर फेसिंग from both the sides intersect is called the theoretical nose of crossing, that is TNC। okay, so this is how your crossing looks like, ठीक है। जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि TNC, ANC, ठीक है, toe of the crossing, facing direction, crossing angle, heel of the crossing। so this diagram actually represent your entire components of the crossing, ठीक है। अब मैं आपको बोला कि एक स्प्लाइस रेल और मैंने बोला एक पॉइंट रेल और एक स्प्लाइस रेल, ठीक है। तो स्प्लाइस रेल क्या होता है, वो स्प्लाइस रेल आपका ये है, ये आपका क्या है, ये स्प्लाइस रेल है, और ये आपका विंग रेल है, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट रेल है। हमने स्प्लाइस रेल को और पॉइंट रेल को क्या किया, मशीन कर लिया। मशीन करने के बाद ये क्या हुआ, ये एक नोज फॉर्म किया। नोज फॉर्म करने के बाद स्प्लाइस रेल के नोज को हमने थोड़ा सा फाइनली कट किया 6 mm थिकनेस पे, ठीक है, 6 mm के थिकनेस पे, ठीक है। और वो क्या हुआ, वो आपका उस पॉइंट को हमने क्या कहा, TNC, ANC। और ANC को क्या कहते हैं, एक्चुअल नोज क्रॉसिंग। और जो थ्योरेटिकल फेसिंग डायरेक्शन में जो थ्योरेटिकली एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, TNC, दैट इज थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं थ्रोट। ये है आपका टो पार्ट, दिस इज योर टो ऑफ द क्रॉसिंग, और इस पार्ट को कहते हैं हील ऑफ द क्रॉसिंग, ठीक है। जब आपका पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल को हम कनेक्ट करते हैं, उधर के पार्ट को हम कहते हैं, मतलब ट्रेलिंग, एक होता है फेसिंग डायरेक्शन, एक होता है रेलिंग डायरेक्शन। तो रेलिंग डायरेक्शन को हम हील ऑफ द क्रॉसिंग कहते हैं, और जो फेसिंग डायरेक्शन है वो आपका टोल ऑफ द, ओके। अब आपका जो फ्लेंज वे है, जब वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जहां नोज बनाता है, वो एक एंगल वहां पे सस्टेन करता है, और उसे कहते हैं हम अल्फा, और वो होता है आपका क्रॉसिंग रेल, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स आपको ऐड करके एक क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसमें आपका स्टार्ट होता है पॉइंट रेल से, स्प्लाइस रेल, फ्लेयर, फ्लेंज वे, heel of the crossing angle, okay, flare, gap, throat, TNC, that is theoretical nose crossing, ANC, actual nose crossing, left hand wing rail, toe of the crossing, right hand wing rail, okay, and this is categorized under the details of a crossing। so how this in this way the crossing looks like actually, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके कंपोनेंट्स क्रॉसिंग के बारे में। और
क्रॉसिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया, एक कंपोनेंट है जो आपको एक कॉम्बिनेशन है जो आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक डिवाइस है जब आपके दो गेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब क्रॉसिंग के कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा भी दे दूंगा। Two wing rails consisting of a right hand and a left hand wing rail that converge to form a throat and diverge again on the either side of the nose. तो अगर हम ध्यान से फिगर को देखें तो हमारे पास दो विंग रेल है, टू विंग रेल कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट हैंड एंड अ लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो दो विंग रेल हमने कंबाइन किया, मैं आपको दिखाता हूं। दो विंग रेल है हमारे पास इस डायग्राम में, दो विंग रेल, ठीक है। सो वी हैव अ राइट हैंड विंग रेल एंड लेफ्ट हैंड विंग रेल, ठीक है। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड विंग रेल और राइट हैंड विंग रेल, वो पहले कन्वर्ज करते हैं टू फॉर्म अ थ्रोट एंड डाइवर्ज अगेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द नोज, ठीक है। तो एक आपका लेफ्ट हैंड विंग रेल और राइट हैंड विंग रेल पहले एक बार उसको कन्वर्ज किया जाता है थ्रोट को फॉर्म करने के लिए, देन उसको डाइवर्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्ज किसी भी साइड में आप कर सकते हैं, इधर साइड ऑफ द नोज। उसके बाद विंग रेल्स आर फ्लेयर्ड एट द एंड्स टू फैसिलिटेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फ्लैंज व्हील इन द गैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका विंग रेल है उसको एक फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं। फ्लेयर इज प्रोवाइडेड सो दैट टू परमिट द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील टू क्रॉस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है। मतलब एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने के लिए what we do, we flared the ends of the wing rail. So wing rails are flared at the ends to facilitate the entry and exit of the flange wheel in the gap, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम एक चेक रेल, एक पेयर ऑफ चेक रेल यूज करते हैं टू गाइड द व्हील, ठीक है। Here you can see a pair of the check rail. Check rail is provided to guide the rail, ठीक है। हम चेक रेल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, टू गाइड दी व्हील, ठीक है, व्हील को गाइड करने के लिए। और हम फ्लेयर क्यों कर रहे हैं इनको, टू परमिट दी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दी फ्लैंज व्हील इन द गैप। और उस व्हील को गाइड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ दी चेक रेल। तो कंपोनेंट्स इसके स्टार्ट होते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड विंग रेल से, जो कन्वर्ज करता है थ्रोट फॉर्म करने के लिए और डाइवर्ज कर जाता है किसी भी साइड पे नोज की, ठीक है, on the either side of the nose. उसके बाद wing rail are flared at the ends to facilitate the entry and exit of the flanged wheel in the gap. उस गैप पे हम flanged wheel की एंट्री और एग्जिट को परमिट करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्लेयर करते हैं उसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने व्हील्स को उस फ्लैंज वे पे गाइड करने के लिए, उस गैप पे गाइड करने के लिए एक पेयर ऑफ चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसी के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा जो क्रॉसिंग है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉइंट रेल और स्पाइस रेल को जब हम मशीन कर रहे हैं तो वहां पे एक जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो उस एंगल ऑफ द क्रॉसिंग के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को हम एक चीज और कहते हैं वी क्रॉसिंग, ठीक है। मतलब साफ हो रहा है कि आपका जब जो गेज है, जो दो फेसिंग गेज है, जब वो एक जगह मीट करेंगे तो एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो टू रेल गेज फेसेस क्रॉस एट एक्यूट एंगल, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ क्रॉसिंग द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। तो पहला है एक्यूट एंगल बोलो या तो वी क्रॉसिंग। टू रेल गेज फेसेस क्रॉस एट एक्यूट एंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल और डायमंड क्रॉसिंग। टू गेज फेसेस मीट एट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सो टू गेज फेसेस मीट एट द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। वो ऑब्ट्यूज एंगल पे होता है, ठीक है। 90 डिग्री 180 डिग्री इस तरह से चीजें आपको पता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को हम वी क्रॉसिंग कहते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग को हम डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। अगली चीज है स्क्वायर क्रॉसिंग। टू ट्रैक्स क्रॉस एट राइट एंगल। जब आपके दो ट्रैक्स राइट एंगल पर क्रॉस करते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड था एंगल ऑफ द क्रॉसिंग। मतलब एंगल के ऊपर, अगर एक्यूट एंगल है तो वी क्रॉसिंग,
अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो डायमंड क्रॉसिंग और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे तो स्क्वायर क्रॉसिंग। अब टाइप्स, इसका एक और क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पहला है बिल्टअप क्रॉसिंग। तो बिल्टअप क्रॉसिंग क्या है, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिखाया जिसमें 2 विंग रेल, एक वी सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल आर असेंबल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ बोल्ट्स एंड डिस्टेंस ब्लॉक टू फॉर्म द क्रॉसिंग। ठीक है, तो बिल्टअप क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि 2 विंग रेल, एक वी सेक्शन मतलब पॉइंट रेल, स्प्लाइस रेल, उनको हम असेंबल करते हैं बाय द मींस ऑफ बोल्ट एंड डिस्टेंस ब्लॉक टू फॉर्म अ क्रॉसिंग। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये लो कॉस्ट, easy to place and repair, bolts require frequent checking, if wear is more than 10 mm renewal, अगर आपका wear उस पे 10 mm से ज्यादा है तो renewal required। तो built up crossing का मतलब हुआ 2 wing rail, एक V section, point rail और splice rail assemble करते हैं by means of bolts and distance block to form a crossing। low cost, easy to place and repair, bolt require frequent checking, if wear is more than 10 mm रिन्यूअल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से पहला है बिल्टअप क्रॉसिंग। फिर है कास्ट स्टील क्रॉसिंग बिल्टअप के हिसाब से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से पहला बिल्टअप था। 1 पीस क्रॉसिंग विद नो बोल्ट एंड रिक्वायर्ड डिटेल मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें बोल्ट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं और एक पीस होता है क्रॉसिंग। मोर रिजिड एज इट इज 1 सिंगल पीस, एक पीस है, कहीं हम इसको मशीन्ड नहीं कर रहे हैं, वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका मोर रिजिड है। इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई है। रिप्लेस बाय कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग, जिसको हमने कास्ट स्टील क्रॉसिंग को रिप्लेस कर रखा है कास्ट मैंगनीज स्टील से। ओके, अब आए कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग। ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्टअप एंड कास्ट स्टील क्रॉसिंग। जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब बिल्टअप को और कास्ट स्टील को, तो वो हो गया कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग। इट कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट स्टील नोज फिनिश्ड एट द ऑर्डिनरी रेल, राइट। CMS क्रॉसिंग। CMS क्रॉसिंग क्या है, ड्यू टू हैवी लोड एंड ट्रैफिक नॉर्मल मैंगनीज रेल्स आर क्विकली वेयरिंग आउट। जो आपके मैंगनीज रेल्स हैं वो हैवी लोड की वजह से बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, वियर्ड आउट हो रहे हैं। ठीक है, घिस जा रहे हैं। तो CMS क्रॉसिंग possess high strength, high resistance to wear and the longer life. Average life of CMS crossing is 4 times that of built-up crossing. इसका लाइफ जो है वो it is 4 times that of the built-up crossing. CMS crossings are free from bolts and other components which normally get loose as a result of traffic. High initial cost but less maintenance cost. Standardized in Indian Railways. So CMS crossings are the standard sections actually which are used these days in the Indian Railways. तो CMS crossing हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो आपका मैंगनीज रेल है, these are actually quickly wearing out these days, and in order to minimize that problem we introduce CMS crossing. उसमें क्या होता है, it possesses the high strength and high resistance to wear and longer life. Average life of CMS crossing is actually 4 times that of built-up crossing. CMS crossings are free from bolts and other components which normally get loose as a result of traffic. High initial cost but less maintenance cost. Standardized in the Indian Railways. Okay. अब according to divergence, पहला था according to angle of crossing, दूसरा था according to the manufacturing processes. अब आगे डाइवर्जन। तो डाइवर्जन में क्या हुआ, इन अ स्प्रिंग क्रॉसिंग वन विंग रेल इज मूवेबल एंड इज हेल्ड अगेंस्ट द वी ऑफ द क्रॉसिंग विद अ स्ट्रॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग व्हाइल द अदर विंग इज रेल इज फिक्स्ड। ठीक है, तो क्या होता है, इन अ स्प्रिंग क्रॉसिंग वन विंग रेल इज मूवेबल, एक विंग रेल आपका मूवेबल होता है एंड इज हेल्ड against the V of the crossing with a strong helical spring while the other wing rail is fixed. ये हो गया आपका डाइवर्जन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं दिखाता हूं अभी। डाइवर्जन के अकॉर्डिंग ही क्रॉस ओवर क्रॉसिंग। क्रॉस ओवर क्रॉसिंग में क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ दिस क्रॉसिंग इज टू कनेक्ट टू पैरेलल और डाइवर्जिंग ट्रैक। जैसे आपका दो ट्रैक अगर डाइवर्ज हो रहा है तो उस केस में जो हम
क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं क्रॉसओवर क्रॉसिंग। तो ये डाइवर्जन के अकॉर्डिंग पहला क्रॉसिंग है क्रॉसओवर क्रॉसिंग। तो फंक्शन क्या है इसका, टू कनेक्ट द टू पैरेलल और डाइवर्जिंग। ठीक है, अब ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉसिंग। ठीक है, ये है आपका क्रॉसओवर क्रॉसिंग। क्रॉसओवर क्रॉसिंग में क्या है, इट कनेक्ट टू पैरेलल और डाइवर्जिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो दो पैरेलल ट्रैक है वो दो डाइवर्ज जब कर रहा है, तो उस केस में इस तरह के डिवाइस को यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसओवर क्रॉसिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग के अकॉर्डिंग है सीजर क्रॉसिंग। सीजर क्रॉसिंग क्या है, सीजर क्रॉसिंग को या डबल क्रॉस को, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ स्विच। ठीक है, सो 4 पेयर ऑफ स्विच में 6 acute crossing and 2 obtuse crossing check rail, and this type is used at the good yard। तो सीजर क्रॉसिंग है आपका डबल क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 6 हम एक्यूट क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं, एक्यूट एंगल 2 ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग और एक चेक रेल। और ये इस तरह के जो सीजर क्रॉसिंग है या डबल क्रॉसिंग है, डबल क्रॉस है, उसे हम किसमें यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड एट द गुड्स यार्ड। ये है आपका डबल क्रॉसिंग। आप देख सकते हो उसमें 6 acute angle crossing, 2 obtuse angle crossing and one pair of check rail। ठीक है, so this type is used at the good yard। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल क्रॉस। अब है डायमंड क्रॉस। ठीक है, डायमंड क्रॉस क्या होता है, डाइवर्जन के हिसाब से डायमंड क्रॉस तब होता है when two track crosses each other at less than 90 degree angle, then it forms a diamond। ठीक है, 90 डिग्री से और 180 के बीच में होता है तो आपका वो एक्यूट एंगल होता है, फिर एक एक्यूट एंगल 180 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। उसके बाद अगर 90 डिग्री से कम है तो वो कौन सा शेप फॉर्म करता है, वो डायमंड शेप फॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायमंड क्रॉस। सो व्हेन टू ट्रैक्स क्रॉस ईच अदर, when two tracks cross each other at less than 90 degree angle, then it form diamond shape, so it is called the diamond cross। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायमंड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद है इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। ये आपके 2 पेयर ऑफ स्टॉक रेल है, ये बेसिकली फ्रॉक है। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग। ये आपका चेक रेल्स है और ये फिर से फ्रॉक रेल है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायमंड क्रॉस। ठीक, this is your diamond crossing। So diamond crossings components are stock rail, points, frog, throw that is tie bar, point rail and check rail। check rail को हम guard rail भी कहते हैं। ठीक है, अब है gathering lines। gathering lines क्या है, when there is more than 2 track divert from one line, then it is called gathering line। ठीक है, तो जब आपके when there is more than 2 track, अगर 2 ट्रैक से ज्यादा आपका डाइवर्ट हो रहा है from the one line, then it is called the gathering line। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे gathering line होता है। So ये जो आपका क्रॉसिंग मैं बता रहा हूँ ये डाइवर्जन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ डाइवर्जन के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि डाइवर्जन के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ जब दो आपके ट्रैक जिस हिसाब से डाइवर्ज करते हैं या कन्वर्ज करते हैं, उस हिसाब से हम इस क्रॉसिंग को प्रोवाइड करते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ द क्रॉसओवर क्रॉसिंग, जैसे जस्ट सपोज क्रॉसओवर क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ जब आपके 2 पैरेलल ट्रैक डाइवर्ज, तो वो क्या हुआ, क्रॉसओवर क्रॉसिंग। ठीक है, जैसे 2 आपके पैरेलल ट्रैक एक दूसरे को डाइवर्ज कर रहे हैं, when 2 पैरेलल, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, when two parallel tracks are crossing each other, this is known as the crossover cross। इसको हम कहेंगे क्रॉसओवर क्रॉस। तो अब डाइवर्जन के ही अकॉर्डिंग दूसरा आता है डबल क्रॉस। पहले तो क्रॉसओवर हो गया, अब डबल क्रॉस में क्या हुआ, ये इसमें क्या होगा, 4 पेयर ऑफ स्विच होगा। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द 4 पेयर ऑफ स्विच। और क्या इसमें होता है,
6 एक्यूट क्रॉसिंग्स होता है, 2 ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग्स होता है और एक चेक रेल होता है, ठीक है। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, गुड्स यार्ड में। तो 6 acute crossing, 2 obtuse crossing and 1 pair of the check rail. So these are used actually at the good yard. आप यहाँ देख सकते हो, इसमें हमने एक पेयर ऑफ दी चेक रेल प्रोवाइड किया है और हमने कितना, इसमें हमने 4 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, ठीक है, और 6 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 obtuse angle crossing, ठीक। तो 6 acute angle, 4 obtuse angle and 1 pair of the what check rail and 4 switches, ठीक है। जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं डबल क्रॉस क्रॉसिंग, ठीक है, उसे कहते हैं हम डबल क्रॉस क्रॉसिंग। फिर है डायमंड क्रॉसिंग। पहले तो हमने देखा क्रॉसओवर, जब आपके दो पैरेलल ट्रैक्स डाइवर्ज करते हैं तो क्रॉसओवर हो गया। जब आपका 6 एक्यूट, 4 ऑब्ट्यूज और एक पेयर ऑफ चेक रेल को कंबाइन करते हैं तो वो हो गया आपका डबल क्रॉस, मतलब एक दूसरे को डबल क्रॉस करता है। फिर जब आपका जो दो रेल एक दूसरे को करेक्ट हो रहा है और उसमें जो है वो 90 डिग्री से उसका एंगल कम फॉर्म हो रहा है, वो डायमंड शेप फॉर्म करता है, उसे कहते हैं हम डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है। ये है आपका डायमंड क्रॉसिंग। जब आपका स्टॉक रेल और जब हम स्टॉक रेल और विंग रेल को करेक्ट करने के बाद उसके जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है, जो नोज फॉर्म कर रहा है, वो जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है वो 90 डिग्री से कम है और वो जो शेप फॉर्म हो रहा है वो डायमंड शेप फॉर्म, तो उसे कहते हैं हम डायमंड क्रॉसिंग। तो डायमंड क्रॉसिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टॉक रेल हैं, पॉइंट्स हैं, थ्रो बार हैं, फ्रॉग रेल्स हैं, ठीक है, पॉइंट रेल हिंजेस हैं और चेक रेल, ठीक है। गैदरिंग लाइन कब होता है, जब आपके पास when more than the 2 tracks are available and they are diverting from the one line, okay, when there is more than 2 track divert from one line, then it is called the gathering, ठीक है। So this is actually about the your points, crossing, switches, okay। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ये बेसिक स्टार्ट होता है टर्न आउट से, ठीक है। देखो टर्न आउट से, ये इंटायर लेक्चर मैंने इसीलिए स्टार्ट किया टर्न आउट से। तो टर्न आउट बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जब आप किसी भी व्हीकल को मूव करते हैं रोड पे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे रेलवेज की, तो आपको एक परमानेंट वे पे, जो मैंने परमानेंट वे आपको बताया था, उस परमानेंट वे पे चलना है। मतलब आप रेल को अपने मन चाहे डायरेक्शंस में नहीं मूव कर सकते, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टर्नआउट का मतलब ये हुआ कि ये एक डिवाइस है, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से if we are willing to change the direction we have of the rail, we can change the direction using this turnout, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ डाइवर्ट करता है और ब्रांच लाइन और साइडिंग टू इज नोन एज टर्न, ठीक है। तो टर्न आउट में क्या होता है, दो ट्रैक आपके मर्ज करते हैं या तो डाइवर्ज करते हैं, टू ट्रैक पैरेलल टू ईच अदर बट आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस कनेक्शन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और टर्न आउट में हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट्स और क्रॉसिंग को यूज करते हैं। तो टर्न आउट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है लीड रेल का और कर्व्ड रेल का, उसे फास्टनिंग किया जाता है जो आपके रोलिंग स्टॉक को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट करता है, ठीक। अब कर्वेचर के हिसाब से लीड रेल्स आर स्ट्रेट, कर्व्ड रेल्स हैव कर्वेचर। टर्न आउट को हम कहां और भी प्रोवाइड करते हैं, these are also provided in yards and the side. This is your turn out. It is a combination of the lead rail and the curved rail so that your rolling stock is diverted from one track to the another track. अब फिर मैंने आपको इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया, देन आपको मैंने इसके डिफरेंट टाइप्स के टर्न आउट बताए, जिसमें लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको बताए गए, ओके। कंपोनेंट्स इसके जैसे अ पेयर ऑफ द टंग रेल, अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल, 2 चेक रेल, 4 लीड रेल, V crossing, slide chairs, stretcher bar, a pair of the heel block, switch type plate or gauge, parts for operating points,
locking system, which include locking box, lock bar, plunger bar, etc. Okay, facing direction, जब आप facing direction वो होता है जब आप standing at the switch and looking toward the crossing हो गया. facing trailing का मतलब standing at the crossing and looking toward the switches. Okay, so this was all about the your turnout. Then crossing ये था कि एक device था जो हम junction पे introduce कर रहे थे where the two rails crossing each other to permit the wheel flange of a railway vehicle to pass from one track to the another. पहले तो चीज है टर्न आउट, मतलब आपके व्हीकल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मोड़ना, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ मोड़ना. अब उस मोड़ने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की यूज होगी, जिसमें से सबसे पहला डिवाइस है क्रॉसिंग. इसीलिए मैंने बोला कि आपका टर्न आउट में पॉइंट्स और क्रॉसिंग अवेलेबल होते हैं उस कॉम्बिनेशन में. तो क्रॉसिंग एक डिवाइस है जो जंक्शन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां आपके दो रेल क्रॉस करते हैं टू परमिट द व्हील फ्लेंज ऑफ अ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू द अनदर. ठीक है. उसके बाद स्विचेस के कंपोनेंट में था अ पेयर ऑफ द स्टॉक रेल एंड पेयर ऑफ द टंग रेल. ठीक है. स्टॉक रेल क्या होता है और टंग रेल क्या होता है ये मैंने आपको बताया. स्विचेस डिफरेंट टाइप्स के, स्टड स्विच और स्प्लिट स्विच, लूज हील टाइप, फिक्स्ड हील टाइप, टो के अकॉर्डिंग अंडरकट स्विच, स्ट्रेट कट स्विच, ओवरराइडिंग स्विच मैंने बताया आपको. फिर मैंने बताया क्रॉसिंग क्या होता है, टर्नआउट बता दिया, आपको पॉइंट्स बता दिया, स्विचेस बता दिया. Crossing is a device which introduced at the point where two gauge spaces cross each other to permit the flanges of a railway vehicle to pass from one track to the another track. इसके components हैं point rail, splice rail, okay, flange way, toe of the crossing, heel of the crossing. इसमें दो विंग रेल को हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एक पेयर ऑफ चेक रेल को भी प्रोवाइड करते हैं. फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. अगर एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल मतलब वी क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब डायमंड क्रॉसिंग, स्क्वायर क्रॉसिंग जब राइट एंगल पे होता है. मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बिल्ट अप क्रॉसिंग है, कास्ट स्टील क्रॉसिंग है, कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग है, सीएमएस क्रॉसिंग्स है. डाइवर्जन के अकॉर्डिंग है आपका क्रॉसओवर क्रॉसिंग. ठीक है. व्हेन यू नो crossing is to connect two parallel or diverging tracks, उसे क्रॉसओवर क्रॉसिंग कहते हैं. then scissor crossing मतलब डबल क्रॉस जिसमें आपका 4 पेयर ऑफ स्विचेस, 6 acute crossing and 2 obtuse crossing and 1 check rail. these are used at good yard. this is actually double crossing. डायमंड क्रॉसिंग में मैंने बताया कि जब वो 90 डिग्री से कम होता है एंगल then it form diamond shape, so it is called diamond crossing. फिर होता है गैदरिंग लाइन जिसमें आपका when there is more than 2 tracks divert from one line then it is called the gathering line. So this is actually about your entire lecture 17 which was divided into part 1 and part 2. ठीक है. ये आपका क्रॉसिंग्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, स्विचेस के बारे में और टर्न आउट के बारे में. मैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा और आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा. थोड़ा एनिमेशंस में लेके आऊंगा कि कैसे टर्न आउट आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्न आउट काम करता है, कैसे आपके स्विचेस काम करते हैं, कैसे पॉइंट्स काम करता है. ओके. और कैसे डायमंड क्रॉसिंग को हम शो करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसका, कैसे क्रॉसओवर क्रॉसिंग को हम शो करते हैं, कैसे एक्यूट एंगल को क्रॉसिंग को शो करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. we'll talk more in more details in next lecture, that is lecture 18. So thank you so much for listening it to very patiently. Have a good day and have a nice day. Thank you students. Thank you everyone. Thank you to all the listeners.